Dear students, today we are going to discuss the rank of the matrices. Let us look what do you mean by rank of the matrices. Uh, if you look, then it is there computing rank by various methods. We know the various method to compute the rank. These methods are Gauss elimination method, by determinant method, by minors, and by normal form. So here, if you want to know the basic how to find the rank, then first of all, we have to know about the submatrix. So what do you mean by submatrix? Let A is Aij be an M cross N matrix. Mind it, means this is like this. The order of this matrix is M cross N. Then a matrix obtained by omitting few rows and columns of A is called सब मैट्रिक्स ऑफ A. अगर हमने क्या किया, जैसे 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज here I have written 1, 2 and 3, 4, 5, okay, 6, 7, 8. So this is a matrix, rectangular matrix of the order 2 cross 4. 2 cross 4. So sub matrices, you can find out the sub matrix. Let us I write here only 1 to 2, only 1 to 2 and 5 to 6. So this matrix is sub matrix. Okay. If I want to write this 3, 4, 7, 8, this is also a sub matrix. Okay. So we can say that the determinant of a square matrix, sub matrix, mind it, this is square sub matrix. For determinant, we always go for square sub matrix. हमने क्या किया है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स पर हम बात कर रहे हैं. दिस इज स्क्वायर सब मैट्रिक्स of order R is called a minor of order R. This is the definition of minor of order R. तो क्या जरूरी है याद करना आपको कि ये मैट्रिक्स जो सब मैट्रिक्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए. ओके, देन ओनली यू कैन for example, if this is the matrix, then omitting the fourth column. अब फोर्थ कॉलम जो है उसको हम हटाना चाहते हैं, फोर्थ कॉलम को हटा दीजिए. फोर्थ कॉलम वी गेट दी सब मैट्रिक्स. तो ये सब मैट्रिक्स आ गया 2 0 3 3 3 minus 2 4 4 minus 1. This is the sub matrix. Then omitting the first and third column of matrix A, उसी मैट्रिक्स का जो प्रीवियस मैट्रिक्स है उसका अगर आपने फर्स्ट और थर्ड कॉलम और लास्ट रो अगर आपने ओमिट कर दिया, then you will get 3 minus 1 3 0. But just you calculate, this is the arrangement, this matrix is arrangement. So for evaluation we have to find the determinant. तो determinant इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, इसका determinant हो गया 3 minus 1 3 0 equal to 3, which is non-zero. This is important. If this is non-zero, is a non-vanishing. इसको हम क्या कहेंगे, non-vanishing minor of order 2. But if you take this minor उसमें बहुत हो सकते हैं, तो आपने ये अगर minor ले लिया 3 4 3 4, then this is 12 minus 12, that is 0. So this is called the vanishing minor of order 2. So you have learned how to find the vanishing and non-vanishing minor. Now this is the, here you can define the rank. Let A is Aij be an M cross N matrix, then A is said to be of rank R if कब rank होगा, if at least one minor of A of order R is not 0. कम से कम होंगे तो बहुत सारे माइनर्स, लेकिन आपको केवल एक ऐसा शो कर देना है, दिखा देना है माइनर जो क्या हो, नॉन जीरो, कि उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो. और एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, और उससे अधिक ऑर्डर का, एक अधिक ऑर्डर का जितने भी माइनर हो वो क्या हो, जीरो हो. देन द रैंक ऑफ ए इज डिनोटेड बाय आर ए. यानी अगर ये दोनों कंडीशन है तभी उस मैट्रिक्स का हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, रैंक आर. यहाँ लिखा है ना कि अगर ऐसा है तभी हम रैंक आर डिफाइन करेंगे. ओके, so this will be the rank R, and then it is denoted by RA, any rank of A is equal to 2, 3, 4. R sometime we define as a row. तो R की जगह पर हम रो का भी यूज करते हैं. Okay? Now these are the important point just to capitalize once again about the rank. कि first is कि as per the definition, rank of A is the order of the largest non-vanishing minor of A.
जो सबसे बड़ा है नॉन वेनिसिंग, उसी का जो ऑर्डर है उसको रैंक कहते हैं। और द रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो। ऑल नॉन जीरो मैट्रिसेस हैव रैंक मोर देन 1। अगर नॉन जीरो है तो उसका रैंक हमेशा 1 से अधिक होगा। द रैंक ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स इज लेस देन आर इक्वल टू द मिनिमम ऑफ दिस। अगर मान लो आपने रो और कॉलम का जो ऑर्डर है, अगर रो क्या है 3 है, कॉलम 4 है, तो 3 4 का जो मिनिमम है वो 3 है, तो उससे छोटा होगा हमेशा रैंक। और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम एज रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो दैट इज ऑलवेज सेम। अगर मैट्रिक्स या उसका ट्रांसपोज दोनों का रैंक क्या होता है, सेम होता है। ओके, फॉर एग्जांपल लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। ओके, तो हियर जस्ट यू चेक कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दी गई है और इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, बोलो। द ऑर्डर इज 3 क्रॉस 4। ये 3 क्रॉस 4 की एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ओके, तो दिस इज स्पेशल मैट्रिक्स वी हैव टेकन। तो द मैक्सिमल माइनर हैव ऑर्डर 3। तो उसका जो माइनर होगा सबसे बड़ा, वो क्या होगा, ऑर्डर 3 का होगा। सो वी कंप्यूट द 4 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3। और 4 माइनर एक स्पेशल मैट्रिक्स है आपके प्रैक्टिस के लिए, यू कैन चेक हियर कि फर्स्ट वन को हमने लिखा 197, ये क्या हो गया, अब 3 क्रॉस 3 का हो गया, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की हो गई। और आपने देख लिया कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई। द अदर 3 माइनर्स, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे, 3 आर ऑल्सो 0, वो भी 0 है। सिंस ऑल द माइनर, दिस इज इंपॉर्टेंट सेंटेंस। अब सिंस ऑल द माइनर ऑफ ऑर्डर 3 आर 0, द रैंक मस्ट बी लेस देन 3। दिस इज इंपॉर्टेंट। सारे माइनर 0 हो गए तो रैंक हमेशा क्या होगा, लेस देन 3 होगा। वी कंटिन्यू टू लुक एट द माइनर ऑफ ऑर्डर 2। अब चूंकि 3 ऑर्डर के सारे 0 हो गए, 3 आर 0, तो सारे 0 हो गए, देन वी कैन गो फॉर लेस देन, मींस ऑर्डर 2 का लेंगे। ऑर्डर 2 में क्या है, नॉन जीरो, जैसे नॉन जीरो, इट इज नॉट नेसेसरी टू कंप्यूट एनी मोर। अब चूंकि एक नॉन जीरो आ गया तो और किसी को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। यू कैन declare the rank of the matrix. You can declare here. If this is here, you got it, then you can write here the rank of the given matrix A is equal to 2. So in symbol form, you can write this is equal to 2. The rank is 2. Okay. So in this way, you can find and you can write. Okay. So now, just you do some practice by taking the some problem of your choice. Thank you very much. Thank you.